Hello students, how are you all? Hope so all of you are fine and happy. Welcome to my YouTube channel, Biology in Seconds. Today we will discuss the lysosomes. Let's start. Lysosomes, it is a combo of two Greek words. Lyso means splitting. MCQs के लिए इसको मार्क कर लीजिए. Lyso means splitting and soma means body. मतलब कि अगर हम इसको क्वाइन करें दोनों को, तो एक ऐसी बॉडी, a body in the cell which is involved in the splitting of various materials. Clear? क्योंकि इसका ये काम यही है. इसको डिफाइन करें, so it is a single membrane bonded organelle which can digest every macromolecule. Can, हम बात कर रहे हैं, it can digest every macromolecule. Clear? जो बड़े बड़े molecules होते हैं, बड़े particles होते हैं, उनकी बात हो रही है. Clear? Now, somewhat about its discovery. So it was discovered by a Belgian biologist by the name of Christian René Dieduff. Commonly इसको Dieduff के नाम से ज्यादातर जाना जाता है. और कौन से ईयर के अंदर? In 1949. MCQ. Clear? और ये दोनों भी MCQs. इनके जो Greek words के जो meanings हैं, they are also MCQs. Now we will move on for the occurrence. ये कहाँ पाए जाते हैं? तो dear students, lysosomes चूंकि membrane bounded organelle है, तो पहली बात तो ये कि it is only found in eukaryotes. और जहां तक eukaryotes की बात है, it is found in almost every eukaryotic cell. तकरीबन हर सेल में मौजूद है, except एक एक्सेप्शन है, और ये आपने मार्क कर लेनी है, the mammalian RBCs. Mammals के जो RBCs हैं उसमें ये मौजूद नहीं होते. If we talk about the human, हमारे अंदर जो mature red blood cell जिसको हम एरिथ्रोसाइट कहते हैं, so जब इसका लाइफ साइकिल पूरा हो जाता है, that is approximately 120 days और the 4 months, clear? तो उसके बाद जो इसकी डिग्रेडेशन है, उसके लिए अल्लाह ताला ने एक प्रोसेस ही अलग से लगाया. ठीक है? Means when it dies, it moves to a graveyard of RBCs, from where it is moved, the parts are split into heme and globin. Globin again is used for recycling, and the heme part, it goes to the liver, from where its degradation further continues, or from in the liver it is converted. The heme means the iron containing protein, it is converted into porphyrin, which is converted into bilirubin, which is converted into bilirubin, which are converted into bilinogens and stercobilinogens and the urobilinogens into the feces. That's why the color of our feces pale yellow, and urobilinogens move towards the excretory system, so that's why the color of the urine is pale yellow. Clear? So इस तरह से तो सिर्फ ये वाहिद ऐसे सेल्स हैं, रेड ब्लड सेल्स, जिनके अंदर लाइसोसोम्स नहीं होते, बाकी ऑलमोस्ट इन एवरी यूकैरियोटिक सेल दे आर फाउंड. नाउ ये तो एनिमल्स की बात हो गई. नाउ इफ यू टॉक अबाउट द प्लांट्स, सो प्लांट्स में जो सेंट्रल वैक्यूल है, डियर स्टूडेंट्स, प्लांट्स के अंदर सेंट्रल वैक्यूल, it functions as a lysosome. It is not a lysosome, but functionally it acts as a lysosome. Clear? हमने पढ़ा था कि प्लांट्स के अंदर लाइसोसोम्स नहीं होते हैं, लेकिन हाँ ऑर्गेनल के तौर पे अगर बात करें, सो दे आर नॉट ओवर देयर, बट द सेंट्रल वैक्यूल इट एनालॉग्स द लाइसोसोम. फंक्शन के एतबार से ये लाइसोसोम का काम करता है. किस तरह से? क्योंकि इनके अंदर जो प्रोटीन्स हैं, जो अमीनो उसमें जो लिपिड मटेरियल्स हैं, और जो इनके अलावा बाकी जो न्यूक्लियोटाइड्स वगैरह, ठीक है, वो इस वैक्यूल के अंदर आकर ही इनकी डिग्रेडेशन होती है. इस वजह से उस एतबार से, फंक्शनल एतबार से जो वैक्यूल है, हालांकि वैक्यूल को हमने डिस्कस किया, सो वैक्यूल फंक्शंस जब वो इस तरह से डिग्रेडेशन में इन्वॉल्व होगा इफ ऑफ वेरियस द ऑर्गेनिक molecules, organic compounds of the plants, so then it acts or it functions or it analogs the lysosome. Clear? इसी वजह से they are less in number in plants. If we talk about bacteria, अब आप सोच रहे होंगे बैक्टीरिया में तो हमने कहा नहीं है, तो नहीं है भाई, it's okay. They are no, because they are membrane bounded organelles, and the prokaryotes they do not have that very membranes. तो फिर लाइसोसोम का इसमें जिक्र कैसे आ गया? तो डियर स्टूडेंट्स, आपने पढ़ा कि बैक्टीरिया के अंदर एक पेरीप्लाज्मिक स्पेस होती है. ठीक है, यूजुअली इट इज प्रेजेंट इन द ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया. पॉजिटिव में भी होती है, बहुत कम में, लेकिन इन द ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया सबके अंदर मौजूद है. जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन और सेल वॉल के दरमियान में जो स्पेस होती है उसे कहते हैं पेरीप्लाज्मिक स्पेस. तो बैक्टीरिया की जो, और खास तौर पर कौन से ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया, उनकी जो पेरीप्लाज्मिक स्पेस है, उनके अंदर कुछ ऐसे एंजाइम्स हैं व्हिच हैव गॉट रोल इन डाइजेशन. क्लियर? तो उस तरह से ये फंक्शन करेंगे, उसकी पेरीप्लाज्मिक स्पेस, इट फंक्शंस एज अ लाइसोसोम, बट इट इज नॉट लाइसोसोम. तो इसमें अपने क्लियर डिफरेंस ध्यान में रखना है. तो अगर आपसे पूछा जाए कि इन प्रोकैरियोट्स व्हिच स्ट्रक्चर बिहेव्स और व्हिच स्ट्रक्चर मिमिक्स और व्हिच स्ट्रक्चर एनालॉग्स
लाइसोसोम, सो द आंसर विल बी पेरिप्लाज्मिक स्पेस, और उसकी रीजन भी मैंने आपको बता दी, ठीक है। तो ये दोनों चीजें एनालॉजिकल हैं, ठीक है। दे आर नॉट द genuine structures, the genuine organelle, but these structures present in the plants, the central vacuole, and in bacteria, the periplasmic space, they behave as lysosomes. Is that clear? चले अब आगे चलते हैं इनकी कंपोजिशन के ऊपर. So it has got the lysosomes. They have got a large number of strong digesting enzymes. Strong digesting enzymes like the acid phosphatases. Number 1, इसका खास तौर पर जिक्र है एसिड फॉस्फेटेजेस. एसिड फॉस्फेटेजेस डियर स्टूडेंट्स, वैसे तो अगर जस्ट फॉर द सेक ऑफ इंफॉर्मेशन आपको बताता चलूं कि ये इनकी ज्यादातर जो तादाद है, द मोस्ट ऑफ द नंबर दैट इज प्रेजेंट इन द प्रोस्टेट ग्लैंड. क्लियर? प्रोस्टेट ग्लैंड का पता है मेल्स के अंदर होता है, सिर्फ मेल्स के अंदर. सो वहां पर जब वो सेमिनल फ्लूइड आता है तो वहां पर इसका रोल मौजूद है इन द प्रोस्टेट ग्लैंड. तो वहां पर इसकी कारकर्दगी देखी जा सकती है. वहीं से ये इसकी डिस्कवरी से रिलेटेड कुछ पॉइंट्स मौजूद हैं. बट इट्स रियल फंक्शन, मतलब इसका काम क्या है एसिड फॉस्फेटेजेस का, कि ये प्रोटीन्स जो होती हैं वहां से रिमूव करवाता है फॉस्फेट ग्रुप्स को. द रिमूवल ऑफ फॉस्फेट ग्रुप्स फ्रॉम द प्रोटीन्स. ऐसे प्रोटीन जिनके पास फॉस्फेट्स होते हैं वहां से उसको रिमूव करवाना फॉस्फेट्स को, ठीक है, इन एसिडिक एनवायरनमेंट, इन एसिडिक एनवायरनमेंट्स. जैसे कि आपको पता है कि प्रोस्टेट ग्लैंड के पास जब वो पहुंचता है सेमन, तो वहां का जो एनवायरनमेंट एसिडिक ही होता है. इसके अलावा, इस एंजाइम के अलावा, एसिड फॉस्फेटेज के अलावा, देयर आर अबाउट 40, मार्क इट प्लीज, वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, 40 डिफरेंट हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स आर देयर. Hydrolytic, it is the word from hydrolysis, and hydrolysis, it is the breakdown of especially the macromolecules in the presence of water. पानी की मौजूदगी में मैक्रोमोलिक्यूल्स का टूटना, that is called as hydrolysis. Clear? आपको याद होगा उसमें हमने जो टॉपिक नंबर हमारे पास 3 था उसमें हमने इसको डिस्कस किया था, ठीक है. नाउ अब उन 40 मुख्तलिफ हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स में कौन कौन से एंजाइम शामिल हैं, हम उनकी बात करेंगे जो हमने इन जनरल हमारे डिस्कशन में आते हैं. For example, carbohydrases. Carbohydrases, that is the generalized term for those enzymes which are involved in the metabolism of carbohydrates. ऐसे enzymes जो carbohydrates की metabolism में, खास तौर पर कैटाबॉलिज्म में इन्वॉल्व हैं, उनको हम कहते हैं carbohydrases. Like salivary amylase, like the pancreatic amylase, ठीक है. So amylase किसको पर एक्ट करता है? स्टार्च के ऊपर. उसको किस में कन्वर्ट करता है? इनटू माल्टोज. देन maltase, it will convert the maltose into glucose. फिर ग्लूकोज के आगे फर्दर ऑक्सीडेशन, ठीक है. ग्लूकोज इट इज अ कार्बोहाइड्रेट, क्लियर, मोनोसैकेराइड, हेक्सोज. इसके ऊपर हेक्सोकाइनेज कन्वर्ट्स इनटू ग्लूकोज 6 phosphate, then glucose 6 into glucose fructose 1,6 bis phosphate, on and on and on. All these are carbohydrates. इसी तरह से lipase like pancreatic lipase, it converts the it acts on the lipids and converts into fatty acids and cholesterol. And proteases, it's a generalized term, it's a general term for the protein digesting enzymes like trypsin, like chymotrypsin, like pepsin, clear? So aminopeptidases, dipeptidases, etc. Eripsin. So these are the proteolytic enzymes or proteases. तो ये सब के सब क्या हैं? All these are hydrolytic, and the nucleases, and all of them. There are 40 different categories. Along with this, the acid phosphatases, so that are present in a small single membrane bonded organelle called the lysosome. Clear? If we talk about the shape, so it is roughly spherical. Remember this word, roughly spherical. Clear? And if we talk about the size, so in general, it ranges from 0.1 micrometer to 0.8 micrometer in diameter. 0.1 micrometer to 0.8 micrometer in diameter. और जो सबसे बड़ा, so जो largest lysosome है, largest lysosome, it is found in WBCs, phagocytic cell, और वहां पर उसका साइज है 0.8 to 2 micrometers in diameter. We are talking in diameters. Clear? तो ये सबसे बड़ा जो लाइसोसोम वहां पर मौजूद है. और आपको पता है ना कि व्हाइट ब्लड सेल्स में कौन कौन से ऐसे सेल्स हैं जो कि which are involved in phagocytosis or digestion. Phagocytosis में 2 नाम आपके सामने आगे होंगे. Number 1 the neutrophils and number 2 are the monocytes. तो स्मॉल पार्टिकल्स की डाइजेशन या फैगोसाइटोसिस के लिए न्यूट्रोफिल्स, और लार्ज पार्टिकल्स की डाइजेशन के लिए आर द मोनोसाइट्स, व्हिच कंबाइन विद ईच अदर टू फॉर्म मैक्रोफेजेस, एंड मैक्रोफेजेस डाइजेस्ट द एंड एनगल्फ द लार्ज पार्टिकल्स.
Now, if we talk about the synthesis, how they are synthesized, किस तरह से बनते हैं? So they are made by the rough endoplasmic reticulum. They are made by the rough endoplasmic reticulum. MCQ. Then transported, क्योंकि rough endoplasmic reticulum के पास क्या मौजूद है, dear students? Yes, it has got ribosomes. ठीक है? So then after that, इनकी जो synthesis हो जाती है on the rough endoplasmic reticulum, then they are transported to the Golgi complex. फिर इनको कहाँ भेजा जाता है? Golgi complex में. लेकिन डायरेक्टली वो छलांग लगा के थोड़ी ना जाएंगे, मतलब रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बने और वहां से उड़ के चले गए पैराशूट के जरिए. नो, they have to move through the smooth endoplasmic reticulum, because the rough endoplasmic reticulum, it is connected with the smooth endoplasmic reticulum, and from smooth endoplasmic reticulum in the form of transport vesicles, they will be transported to the forming phase or the cis phase of the Golgi complex or Golgi apparatus. तो जहां पर एक इंपॉर्टेंट एमसीक्यू ये बनता है, they are made by rough endoplasmic reticulum, transported to Golgi complex through via means through, किसके जरिए जाते हैं, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है, through smooth endoplasmic reticulum, not from parachutes. Clear? After modification, अब Golgi complex क्या करता है? It modifies the incoming products. So after its modification, उसको modify करने के बाद, then it is released in the form of from, ये बहुत ही अहम, इसको भी मार्क कीजिए कि Golgi, ये रहा Golgi apparatus, I have drawn it, और इसकी जो ट्रांस फेस, जो मैच्योरिंग फेस जिसको हम कहते हैं, जिसको कनकेव, जो थोड़ा सा अंदर वाला होता है, कनकेव होता है, उसे हम कहते हैं ट्रांस फेस. तो ट्रांस फेस से Golgi वेसिकल की शक्ल में निकलेंगे. So here is, so ये रहा ट्रांस फेस, ये सिस फॉर्मिंग फेस है, ये ट्रांस मैच्योरिंग फेस है, ये मैच्योरेशन फेस है, ये कनकेव होता है, ठीक है, इनर साइड. सो यहाँ पर पहले बड बनेगी Golgi वेसिकल, यहाँ से फिर ये बड ऑफ होगा द Golgi वेसिकल. लेकिन वो Golgi वेसिकल, द Golgi वेसिकल which contains the lysosomal enzymes is called, yes dear students, what is it called? It is called the primary lysosome. अब चलते हैं हम इनकी, एक तो थोड़ा डायग्रामेटिकली देख लें कि किस तरह से ये काम कर रहे हैं. दूसरे नंबर पर हम ये भी देखते हैं कि मुख्तलिफ टाइप्स जो लाइसोसोम्स की हैं, दैट आर मच मोर इंपॉर्टेंट. उससे पहले एक इंपॉर्टेंट एमसीक्यू आपसे शेयर करता चलूं, दैट द कंटेंट्स ऑफ लाइसोसोम्स आर एसिडिक. वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एमसीक्यू. द कंटेंट्स ऑफ लाइसोसोम्स आर एसिडिक. क्लियर? चले, तो यहां से बना ये. सो दिस इज द प्राइमरी लाइसोसोम. तो प्राइमरी लाइसोसोम को हमने डिफाइन कैसे किया? The budded of Golgi vesicle containing the lysosomal enzymes. ऐसा Golgi vesicle जिसके अंदर lysosomal enzymes होंगे, या जो शुरू में लाइसोसोम बनेगा, उसे हम कहते हैं the primary lysosome. So this is the definition. ये रहा हमारे पास primary lysosome. अब इसके पास 2-3 रूट हो सकते हैं. एक रूट क्या? तो लाइसोसोम, या जिसको हम प्राइमरी लाइसोसोम कहते हैं, इसका जो सबसे प्राइम फंक्शन क्या है कि सेल के अंदर एंट्री मारने वाला कोई भी particle, कोई भी चीज, either it is food particle, either it is a liquid particle, either it is a bacteria, or anything, or it's a food, anything which gets entry into the cell, it is approached by the primary lysosome. So ये हमारे पास एक food particle है, यहीं से स्टार्ट करते हैं. Here is a food. This is the plasma membrane. This is plasma membrane. और ये फूड है, फूड अब सेल में आना चाहता है, तो ऐसा नहीं है कि जैसे आया वैसे अंदर चला जाएगा. नो, इट इज बाउंडेड बाय द मेम्ब्रेन, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के इसको बाउंड किया जाएगा, एंड इट इज कन्वर्टेड इनटू नाउ, इस तरह से इसके गिर्द इसको पर्दा करवाया जाएगा. ठीक है, ऐसे नहीं भेजा जाना, पैक करके भेजा जाना, यहाँ से खाली नहीं जा सकते. सो दिस इज कॉल्ड एज फूड. अब ये फूड, और फूड के गिर्द प्लाज्मा मेम्ब्रेन, नाउ इट हैज बिकम फूड वैक्यूल. इट इज कॉल्ड फूड वैक्यूल और डाइजेस्टिव वैक्यूल. अब क्या होगा, जैसे ही ये सेल के अंदर आया या फूड वैक्यूल, प्राइमरी लाइसोसोम भाग करके उसके साथ जाकर अटैच हो जाएगा. ठीक है, उसके साथ जैसे अटैच होगा, इट विल फ्यूज विद दिस. सो दिस इज द प्राइमरी लाइसोसोम गेटिंग फ्यूज्ड विद द फूड वैक्यूल. सो इट इज नाउ कॉल्ड द सेकेंडरी लाइसोसोम. तो प्राइमरी लाइसोसोम और ये रहा सेकेंडरी लाइसोसोम को किस तरह से कह सकते हैं? द फूड वैक्यूल प्लस प्राइमरी लाइसोसोम इज इक्वल टू सेकेंडरी लाइसोसोम. क्लियर? फूड वैक्यूल प्लस प्राइमरी लाइसोसोम इज इक्वल टू सेकेंडरी लाइसोसोम. और फूड वैक्यूल को हम क्या कह रहे हैं? फैगोसोम, क्योंकि ये फैगोसाइटोसिस के जरिए, यू नो एंडोसाइटोसिस एंड टू टाइप्स, द फैगोसाइटोसिस एंड पिनोसाइटोसिस. सो एंडोसाइटोसिस, एंडो मींस इनसाइड, तो सेल के अंदर कोई भी चीज जब एंटर होती है, इट ब्रेक्स द membrane and it gets covered with that very membrane and comes inside. So this process is called as endocytosis. Endo means inside, cyto means cell, and cis means the process. तो अगर तो वो एंडोसाइटोसिस के जरिए ये फूड आ रहा है, मतलब सॉलिड पार्टिकल आ रहा है, तो उसे कहेंगे फैगोसाइटोसिस. और अगर वो कोई लिक्विड चीज आ रही है, तो इट इज कॉल्ड एज पिनोसाइटोसिस. तो फैगोसाइटोसिस को सेलुलर ईटिंग भी कहेंगे, जैसे सेल कुछ खा रहा है,
the cell is eating, as you can see it is eating, या कोई liquid चीज जाएगी, कोई liquid like water or anything else, so अगर वो इस तरह से endocytosis के जरिए आएगी, it will be called as pinocytosis or the cellular drinking, like the cell is drinking something. Clear? So this is how. अब secondary lysosome बन गया, ये एक ही वैक्यूल में, एक ही वो उसमें वैक्यूल में आ चुकी हैं ये lysosomal enzymes और ये food. अब ये lysosomal enzymes, as they are hydrolytic in their nature, they will attach with these and digest the particle. What kind of it is? किसी भी तरह का जिस तरह का भी है, वो कार्बोहाइड्रेट है, वो लिपिड है, वो प्रोटीन है, वो न्यूक्लिक एसिड है, anything it is, so it is digested by the, and ये देखिए अब इसके छोटे छोटे पीसेस हो गए. Now it gets digested. ठीक है, या फिर अब जो कुछ आया वो सारा कुछ डाइजेस्ट नहीं हुआ, आफ्टर इट्स एब्जॉर्प्शन को थोड़ा बहुत अनडाइजेस्टेड भी रह गया. ठीक है, सो उस जो अनडाइजेस्टेड जो होगा उसको भी इसी तरीके से वो बाहर भेजा जाएगा. ठीक है, तो ये जो सा वैक्यूल यानी कि जो प्राइमरी लाइसोसोम आफ्टर डाइजेशन जिस लाइसोसोम के जरिए इसको बाहर निकालने की कोशिश की जा रही है, दिस इज कॉल्ड एज रेसिडुअल बॉडी और इट इज कॉल्ड एज टर्शियरी लाइसोसोम. ठीक है, द लाइसोसोम that have undigested food or waste is called tertiary lysosome. ठीक है, जिसको रेसिडुअल बॉडी भी कहते हैं. आमतौर पर यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स में ये एक्सोसाइटोसिस के जरिए निकल जाता है, लेकिन डियर स्टूडेंट्स जो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स होते हैं जैसे कि हम, तो हमारे अंदर ये जो टर्शियरी लाइसोसोम है इसके अंदर मौजूद जो वेस्ट होता है इट गेट्स स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ लाइपोफिस्किन ग्रेन्यूल्स, और फिर ये जमा रहते हैं, हमें नुकसान आमतौर पर ज़्यादा नहीं पहुंचाते. तो ये एजिंग का भी एक प्रोसेस समझा जाता है इन ग्रेन्यूल्स का जमा हो जाना, लाइक इन द हार्ट और इन द आईज और इन द स्किन एक्सेट्रा एक्सेट्रा. सो एक तो कहानी हुई यहाँ पे खत्म. दूसरी कहानी क्या है कि अगर यही प्राइमरी लाइसोसोम, अब सेल में बहुत सारी चीज़ें हैं, ऑर्गेनेल्स हैं, बहुत सारे मटेरियल्स हैं, अब काम करके जैसे माइटोकॉन्ड्रिया थक गया उसका और वो सही तरह से अब काम नहीं कर पा रहा, बूढ़ा हो चुका है, या कोई ऐसा मटेरियल सेल के अंदर अब जो सेल का अपना ही पार्ट था वो डेड हो चुका है, तो ऐसी कंडीशन में क्या होगा कि प्राइमरी लाइसोसोम उसकी तरफ भी लपकेगा, उसको अपने अंदर एंटर करेगा. जैसे कि यहाँ पर आपको माइटोकॉन्ड्रिया दिखाया गया, इट इज वॉर्न आउट माइटोकॉन्ड्रिया, जो काम इसके जिम्मे लगाया गया था ये नहीं कर रहा, तो फिर इस बजाय इसके कि ये और ज़्यादा यहाँ पर रहे और फिर वो वेस्ट प्रोड्यूस करे और एनर्जी को भी कंज्यूम करे, तो बेहतर है इसको डाइजेस्ट करके और इससे या तो एनर्जी हासिल कर ली चाहिए या फिर इसको रिसाइकल करके इससे नया माइटोकॉन्ड्रिया भी बनवाया जा सकता है, या कोई रिक्वायर्ड पार्टिकल या कोई और रिक्वायर्ड चीज़ भी बनवाई जा सकती है. So the primary lysosome plus the worn out parts of the cell, this is called as autophagosome. Here we go, autophagosome, auto means self. तो वो प्राइमरी लाइसोसोम याद रखिएगा, ऑटोफैगोसोम. अच्छा, इसका एक और भी नाम द साइटोलाइसोसोम भी कहते हैं इसको, ऑल्सो कॉल्ड एज साइटोलाइसोसोम. साइटो मीन द सेल. तो ये ऐसा लाइसोसोम जो सेल के हिस्सों को खाना शुरू कर दे, ऐसे नहीं कि उसे मुंह उठा के खाना शुरू कर दिया, ऐसी बात नहीं है. एक या तो खराब हो चुके हैं या बाज़ औक़ात ऐसा होता है इन केसेस ऑफ स्टारवेशन. तो याद रखना, इन केसेस ऑफ स्टारवेशन जब कहत आ जाए और फिर क्या होता है कि अब सेल को एनर्जी की जरूरत है, तो सेल क्या करेगा, जो एक्स्ट्रा जो ऑर्गेनल्स पड़े हुए हैं उनको खाना शुरू कर देगा और उससे फिर बनवाएगा एनर्जी. सो इन स्टारवेशन तो ये ऑटोफैगोसोम इस तरह से काम करेगा. या फिर मैंने दूसरी सूरत आपको बताई कि जब कोई हिस्सा काम सही तरह से कर नहीं रहा, तो फिर उसको भी रिसाइकल करने के लिए या फिर उसको उससे कोई और प्रोसेस करवाने के लिए इस्तेमाल कर लिया जाएगा. तो ऑटोफैगोसोम या साइटोलाइसोसोम इसका दूसरा नाम, इट इज द प्राइमरी लाइसोसोम्स प्लस worn out और dead cellular materials is equal to autophagosome or it is called as the cytolysosome. Clear? तो इसने पकड़ा इसको, माइटोकॉन्ड्रिया को, खराब हो चुका था, इसको पकड़ करके इसको डाइजेस्ट किया and now it's okay. Clear? So this is how it works. Clear? So ये equations आपने जरूर इनमें याद रखनी है. So primary lysosome, the butted of Golgi vesicle containing lysosomal enzymes. Secondary lysosome, the food vacuole plus primary lysosome. Autophagosome or cytolysosome, the primary lysosome plus the worn out or dead cellular material is equal to autophagosome. And the residual body or tertiary lysosome, that is the lysosomes that have undigested material which have to be exported out of the cell by exocytosis in the unicellular organisms or by or it is stored as a lipofiskin granules in the multicellular organisms. So that very lysosome is called as
tertiary lysosome, or it is also called as residual body as it retains in the multicellular organisms permanently. और फिर मुख्तलिफ तरह के इसमें वो कलर्ड स्पॉट्स नजर आना शुरू हो जाते हैं हार्ट में, ब्रेन के अंदर, और ये इस तरह के हमारे जो किडनीज के अंदर, स्किन के अंदर, तो ये एक एजिंग का भी निशान समझे जाते हैं. इट्स अ साइन ऑफ एज. नाउ सम फंक्शंस रिलेटेड टू lysosomes which are very important. So first of all, the intracellular digestion. Intra means inside, cellular means cell. Digestion means the breakdown of the complex and the large molecules. So dear students, intracellular digestion मतलब वो digestion जो सेल के अंदर हो रही है, तो उसमें it is one of the most important functions of the lysosomes. So the foreign particles received by cells, किसी भी तरह का foreign particle, बाहर से आने वाला particle, which is received by the cells either by phagocytosis, यानी कि कोई solid चीज सेल के अंदर आ रही है, phagocytosis, और pinocytosis means the liquid thing, कोई भी लिक्विड वो अंदर आ रहा है, दे आर डाइजेस्टेड बाय लाइसोसोम्स. दिस काइंड, जो सेल के अंदर कोई चीज आई, एंटर हुई और लाइसोसोम्स ने उसको पकड़कर उसको डाइजेस्ट कर दिया, दिस काइंड ऑफ डाइजेशन इज कॉल्ड एज इंट्रासेलुलर डाइजेशन. इससे पहले डायग्राम में भी आपसे जिक्र किया, जैसे वो फूड जो है वो पार्टिकल आ रहा है और उसको प्राइमरी लाइसोसोम्स दे आर अप्रोचिंग देम एंड मेकिंग द सेकेंडरी लाइसोसोम एंड देन डाइजेस्टिंग इट. और जब फिर आपने चैप्टर नंबर 12 इन द डाइजेशन न्यूट्रिशन, उसमें भी आपने पढ़ा था लाइक फॉर एग्जांपल इन अमीबा प्रोटियस, तो उसके अंदर होती है इंट्रासेलुलर डाइजेशन है. ओके, सो दैट इज अ वेरी गुड एग्जांपल. नाउ द सेकंड फंक्शन, इंपॉर्टेंट फंक्शन, इज एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन. एक्स्ट्रा मींस आउटसाइड, सेलुलर मींस सेल, यानी वो डाइजेशन हो तो बॉडी में रही है लेकिन सेल के बाहर हो रही है. सो बाज़ औक़ात इस तरह भी होता है कि आउटसाइड द सेल, यानी कि एक्स्ट्रा सेलुलर एनवायरनमेंट में भी लाइसोसोमल एंजाइम्स को रिलीज किया जाता है ताकि वहां पर डाइजेशन में हेल्प हो सके. इस तरह की जो डाइजेशन है, दैट इज कॉल्ड एज एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन. So releasing lysosomal enzymes into extracellular means outside the cell environment is called as extracellular digestion. इसकी बहुत बेहतरीन एग्जांपल, the lysosomes, for example the lysosomes of osteoclast, आपको याद है चैप्टर नंबर 16 सपोर्ट एंड मूवमेंट, उसमें आपने द प्रोसेस ऑफ रिपेयर ऑफ ब्रोकन बोन पढ़ा, उसमें आपने इनका जिक्र सुना था, ऑस्टियोक्लास्ट, ओस्टियोब्लास्ट एंड फाइब्रोब्लास्ट एंड ओस्टियोसाइट्स. ठीक है, और द प्रोजेनिटर सेल्स, तो वहां पर ओस्टियोक्लास्ट, ओस्टियो मींस बोन, क्लास्ट ये ऐसे सेल्स हैं जो बोन मटेरियल को रिजॉल्व करते हैं, डिसॉल्व कर देते हैं. ठीक है, सो द बोन डिसॉल्विंग सेल्स आर कॉल्ड ओस्टियोक्लास्ट. तो ओस्टियोक्लास्ट के जो लाइसोसोम हैं, ये जब रिलीज होते हैं तो ये क्या होता है कि जो बोन का जो एक्सेस मटेरियल होता है उसको रिमूव कर दिया जाता है. जैसा कि आपने पढ़ा था, फॉर एग्जांपल इन रीमॉडलिंग, द लास्ट स्टेप ऑफ रिपेयर ऑफ द ब्रोकन बोन, उसका लास्ट स्टेप रीमॉडलिंग, तो वहां पर ओस्टियोक्लास्ट तो ज्यादा एक्टिव होते हैं, यानी कि जो एक्सेस बॉडी मटेरियल लग चुका होता है उसको रिमूव कर, तराश कर उसको सही करते हैं. और इसी तरह से एक और बहुत अहम फंक्शन ऑटोलाइसिस. लाइसिस मींस ब्रेकडाउन, ऑटो मींस सेल्फ. तो जब कोई भी ऐसा सेल जो हमें नहीं चाहिए, हमारी बॉडी को उसकी जरूरत नहीं है, और वो बॉडी उसको रिमूव करना चाहती है, तो फिर क्या किया जाएगा कि उस सेल के अंदर मौजूद जितने भी लाइसोसोम होंगे सबको फाड़ दिया जाएगा. दे विल, ऑल द लाइसोसोम्स विल बर्स्ट as they contain strong digestive enzymes, hydrolytic enzymes, so they will eat everything inside the cell. और क्या होगा? The cell will die. Clear? So all lysosomes of cell burst to dissolve the cell completely, or disintegration of the cell. This is called as autolysis. तो इसकी इसी प्रॉपर्टी की वजह से जो लाइसोसोम्स हैं उनको कहा जाता है सुइसाइडल बैग्स. सुइसाइड का मतलब है खुदकुशी, सुसाइड, ये सुसाइडल अटैक, खुदकुश हमला. तो जब भी सेल को जरूरत नहीं है, उसकी हमारी बॉडी को किसी सेल की जरूरत नहीं है, तो उसके लाइसोसोम्स को फाड़ दिया जाएगा. सो द सेल विल डाई. सो लाइक फॉर एग्जांपल द टेल ऑफ टैडपोल, जो लार्वल फॉर्म होती है फ्रॉग की, उसमें वो दुम होती है, टैडपोल, याद है आपको? तो लेकिन जो एडल्ट फ्रॉग होता है उसमें वो टेल नहीं होती, तो उस टेल को रिमूव किया जाता है बाय दिस प्रोसेस व्हिच इज कॉल्ड एज द ऑटोलाइसिस. क्लियर? एंड इट इज डन बाय द लाइसोसोमल एंजाइम्स. इसी तरह से जब बच्चा जो ह्यूमन माँ के पेट में होता है, व्हिच इज इन द फॉर्म ऑफ द मदर, इट हैज गॉट सम इंटरडिजिटल स्किन, ये हमारे डिजिट्स के दरमियान स्किन होती है, बट व्हेन द बेबी इज बोर्न देयर इज नो स्किन, नो वेब ओवर हियर. सो यहाँ पर भी उनको रिमूव कर दिया जाता है, या जैसे कि टेल बोन का एक कॉन्सेप्ट है, द कॉक्सिक्स, उसको डाइजेस्ट करवा दिया जाता है. सो दिस इज कॉल्ड एज ऑटोलाइसिस. क्लियर? नाउ ऑटोफैगी, फैगी मीन्स टू ईट, ऐसा प्रोसेस जिसमें सेल अपने ही वॉर्न आउट ऑर्गेनेल्स को या फिर किसी ऐसे हिस्से को जो किसी काम का नहीं रहा, या जो जिसकी डेथ हो चुकी है, उसको तरीके के साथ लाइसोसोमल एंजाइम्स अपने साथ जोड़ करके और उसको डाइजेस्ट कर देंगे. दिस इज कॉल्ड एज ऑटोफैगी. क्लियर? सो द प्रोसेस इन व्हिच द वॉर्न आउट or the dead organelles are digested by the lysosomes of the cell, this process is called as autophagy. तो आपको क्लियर हुआ डिफरेंस ऑटोलाइसिस और ऑटोफैगी में? ठीक है, ऑटोलाइसिस
सुसाइडल एक्टिविटी, जब सेल की जरूरत नहीं है, इसे पूरा सेल उड़ गया, लेकिन ऑटोफैगी पूरा सेल नहीं उड़ाया गया, बल्कि उसमें से वो हिस्सा जो नकारा हो चुका है उसको सिर्फ खिला दिया गया बाय द लाइसोसोम्स। फॉर एग्जांपल वॉर्न आउट माइटोकॉन्ड्रिया, जिसको हमने इससे प्रीवियस जो स्लाइड में पढ़ा भी, ऑटोफैगोसोम्स या साइटोलाइसोसोम्स, वो उनको किस तरह से खाते हैं। अब ये वाला जो प्रोसेस है ऑटोफैगी, ये दो जगह पे बहुत हमें हेल्प करता है। एक तो स्टारवेशन आपको बताया कि कहत की हालत में जब सेल को एनर्जी नहीं मिल रही और सेल को जरूरत है एनर्जी की, अदरवाइज और अगर उसको एनर्जी ना मिली तो एबनॉर्मलिटीज हो सकती हैं, सेल की डेथ हो सकती है, तो सेल क्या करेगा, फिर लाइसोसोम्स को ऑर्डर देगा कि वो अपने ही जो गैर जरूरी जो ऑर्गेनल्स हैं, जो पार्ट्स हैं, उनको खा के और उसको एनर्जी में कन्वर्ट करे। सो दिस इज हाउ इट हेल्प्स द स्टारवेशन। और इट इज ऑल्सो, दिस प्रोसेस ऑल्सो यूज्ड इन द कंट्रोल ऑफ नंबर ऑफ ऑर्गेनल्स। मतलब कि बाज़ औक़ात सेल में कुछ ऑर्गेनल से ज़रूरत पड़ने पर बहुत बन गए, और लेकिन अब वो अब ज़रूरत नहीं रही उनकी, तो फिर क्या किया जाएगा, जो एक्सेस है दे आर ईटन अप और दे आर डाइजेस्टेड बाय द लाइसोसोम्स। क्लियर? नाउ अनदर टर्म इज देयर, अनदर फंक्शन इज देयर, दैट इज क्राइनोफैगी और क्राइनोफेजी। क्राइनो इज फ्रॉम endocrine or endocrine glands, which are ductless glands, and they secrete hormones into blood. Clear? So अगर किसी एंडोक्राइन ग्लैंड के अंदर हार्मोन्स जरूरत से ज्यादा बन गए, मतलब समटाइम्स ऐसा होता है कि एक रूटीन चल रही है, हार्मोन्स बन रहे हैं, ग्लैंड बना रहा है, लेकिन इमीडिएटली द एक्टिविटी स्टॉप, मतलब कि जब वो जरूरत नहीं रही उसकी, लेकिन बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि इसमें एंजाइम्स ज्यादा बन चुके, हार्मोन्स ज्यादा बन चुके होते हैं, तो ऐसी कंडीशन में लाइसोसोम्स क्या करेंगे, दे विल ईट अप द एक्सेस हार्मोन्स। सो द एक्सेस हार्मोन्स ऑफ एन एंडोक्राइन ग्लैंड digested by the lysosome, this process is called as crinophagy. Now dear students, some information related to storage diseases as per our curriculum. So storage disease नाम से थोड़ा सा ज़ाहिर है, ऐसी बीमारी जिसमें कुछ स्टोर हो रही हो। तो कोई भी चीज़ स्टोर कब होगी, जब उसका सफाया नहीं होगा। ठीक है, अब घर में कुछ चीज़ लेके आते हैं, इस्तेमाल नहीं करते, तो वो स्टोर हो जाती है। इसी तरह से सेल्स के अंदर भी मुख्तलिफ तरह के मटेरियल्स आ रहे हैं, कार्बोहाइड्रेट्स आ रहे हैं, लिपिड्स आ रहे हैं, प्रोटीन्स आ रही हैं, एंड इफ दे आर नॉट ब्रेकन डाउन, ठीक है, अगर उनको तोड़ा ना जाए, उनके ब्रेकडाउन ना हो सके, उनका कैटाबॉलिज्म ना हो सके, तो वो सेल के अंदर जमा होना शुरू हो जाते हैं, जिसकी वजह से सेल विल सफर फ्रॉम एबनॉर्मलिटी. So this is in term, cell makes the tissues, tissue make the organs, and organ make the organ systems, so it will affect like that. Okay, so we are talking about the lysosomal storage diseases, ऐसी बीमारियां जो कि किसी एक खास लाइसोसोमल एंजाइम के एब्सेंट हो जाने की वजह से होती हैं, और उसकी वजह से जो भी एंजाइम एब्सेंट होगा, तो उससे रिलेटेड जो सब्सटेंस है वो सेल के अंदर जमा होता जाएगा, सो वो स्टोर होता चला जाएगा, एंड इट विल लीड टू एन एबनॉर्मलिटी. So that is called as storage disease. So that is due to mutation in the lysosomal enzymes, one of the lysosomal enzymes leading to the storage of substances within the cells. और खास तौर पर यहाँ पर वो वाले एंजाइम इफेक्ट होते हैं which are involved in कैटाबॉलिज्म. हम मेटाबॉलिज्म की बात करें तो दो तरह का होता है, एक मेटाबॉलिज्म और एक एनाबॉलिज्म, कैटाबॉलिज्म और एक एनाबॉलिज्म. कैटाबॉलिज्म में ब्रेकडाउन हो रहा है, एनाबॉलिज्म में सिंथेसिस हो रहा है, तो ये लाइसोसोमल एंजाइम है, वो वाले एंजाइम इसमें स्टोरेज डिजीज में इन्वॉल्व होंगे जो कि कैटाबॉलिक हार्मोन्स हैं. ठीक है, उनमें से कोई एक एब्सेंट हो सकता है. And about 20, ये important MCQ, about 20 storage diseases are known today. उसमें से दो का जिक्र हमारी बुक में दे दिया गया है, हमारे करिकुलम में मौजूद है. The first one is glycogenosis type 2. So इसको Pompe's disease भी कहा जाता है, इसको Maltase deficiency भी कहा जाता है. एक्चुअली इसमें होता क्या है डियर स्टूडेंट्स, कि सेल्स के अंदर मौजूद जो ग्लाइकोजन है, ग्लाइकोजन हमारे अंदर कैसे बनती है, जो सरप्लस ग्लूकोज है उसको कन्वर्ट किया जाता है इनटू ग्लाइकोजन एंड इट इज स्टोर्ड इन द लिवर एंड द मसल सेल्स. तो वो जमा होती जाएगी सरप्लस ग्लूकोज इनटू ग्लाइकोजन, लेकिन ग्लाइकोजन को तोड़ने के लिए, इसके ब्रेकडाउन के लिए, इसके कैटाबॉलिज्म के लिए देयर इज एन एंजाइम बाय द नेम ऑफ अल्फा 1,4 ग्लूकोसाइडेज, या इसको डी ब्रांचिंग एंजाइम भी कहते हैं. सो ये क्या करता है, ग्लाइकोजन को तोड़कर किसमें कन्वर्ट करता है, इनटू ग्लूकोज, एंड दैट वेरी ग्लूकोज विल बी ऑक्सीडाइज्ड एंड कन्वर्टेड इनटू कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड एटीपी इन हीट. बट इन द केस ऑफ म्यूटेशन, अगर म्यूटेशन हो जाए इस एंजाइम में, इस जीन के, द जीन मेकिंग दैट वेरी एंजाइम, सो इट विल प्रूव डेंजरस. तो इससे होगा क्या, जब ये एंजाइम नहीं है तो ग्लाइकोजन इज नॉट कन्वर्टेड इनटू ग्लूकोज, सो देन इन दैट वेरी केस द ग्लाइकोजन स्टार्ट्स एक्यूमुलेटिंग इन द सेल्स ऑफ द लिवर एंड मसल्स, और आमतौर पर इसमें स्वोलन बैली और इसकी तरह से लिवर और मसल्स के अंदर कुछ डिफॉर्मिटीज जो है वो स्टार्ट हो जाती है. सो दिस इज कॉल्ड एज ग्लाइकोजेनोसिस टाइप 2. Another disease, lysosomal storage disease, that is Tay-Sachs disease. So it is due to the deficiency of beta-hexose aminidase, which is required for the catabolism of lipids. ये lipids को तोड़ने के लिए चाहिए, उसके breakdown के लिए चाहिए, लेकिन कहाँ पर? In the brain and the spinal cord, means our central nervous system, means CNS. और आपको पता है डियर स्टूडेंट्स के हमारे ब्रेन के अंदर फैट्स की तादाद और लिपिड्स की तादाद काफ़ी ज़्यादा है, तो वहाँ पर ये एंजाइम क्या करता है कि जो अनवांटेड और गैर ज़रूरी
जो लिपिड्स होते हैं उनको तोड़ करके उनको बॉडी से रिमूव करवाने में इनका रोल होता है. अगर ये एंजाइम ना हो, द बीटा हेक्सोस एमाइनेटेज, सो द लिपिड्स स्टार्ट एक्यूमुलेटिंग इन द ब्रेन सेल्स एंड द मेम्ब्रेन बॉन्डेड ऑर्गेनेल्स. इससे होगा क्या, चूंकि ये ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड के सेल्स होंगे ज़्यादातर इसमें इन्वॉल्व, सो नर्वस सिस्टम विल बी अफेक्टेड. सो इट विल लीड टू द लॉस ऑफ मसल कंट्रोल इन द बेबी, चूंकि जेनेटिक डिसऑर्डर्स हैं, कॉन्जेनिटल डिजीजेस हैं ये, एंड मेंटल रिटार्डेशन and blindness and paralysis, and eventually it may also lead to the death of the baby.